very hello to all my dears. Today I am going to tell you that how can you calculate logarithm and anti-logarithm of any value, that is log and anti-log. सो अगर हम 12th में केमिस्ट्री की बात करें तो log की वैल्यू बेटा CBSE में जो आपको पुट करनी होती है वो गिवन होती है। दैट इज़ कि मान लो आपको किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है लॉग की वैल्यू 2 के लिए, तो आपको वो वैल्यू क्या होगी, गिवन होगी। बट एक्सेप्ट केमिस्ट्री या हम किसी और सब्जेक्ट की बात करें तो लॉगरिथम हमें पता होना चाहिए दैट हाउ कैन वी सी द टेबल ऑफ लॉग। जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस को ट्राई करते हो फ्रॉम बुक, दैट मे बी हेल्प बुक और NCERT, then you have to check all the values for logarithm and anti-logarithm. So in starting, what do you mean by logarithm? And its short form is log, and for anti-logarithm it is written as anti-log. First of all, if we talk about log, there are two parts in logarithm of a number, that is characteristic and mantissa. The two parts are characteristics and mantissa. If we talk about characteristic is a part which is integral and mantissa is a fractional part, that is in point. That means the point value is fractional part and called as mantissa, but the integral part is called characteristic. जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक, और जो फ्रैक्शन में होगा, डेसिमल के बाद होगा, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय लॉग? अगर हम एक वैल्यू की बात करें दैट इज 2 raised to the power 3, that means 3 power of base 2. 3 power of base 2 is equal to 8. Clear? 3 power of base 2 is 8. We can write it as log 2 8 is equal to 3. What we call it as log of 8 to the base 2. ऊपर वाली वैल्यू को हमने क्या बोला, 3 power of base 2 is equal to 8. I am repeating it that 3 power of base 2 is 8. If here is 4 raised to the power 2, we can write it 4 into 4, that is 16. We can say it 2 power of base 4 is equal to 16. If we write this value or term in form of logarithm, then log of 8 to the base 2 will be equal to 3. Log of 8 to the base 2 will be equal to 3. That means for this we can write it log, यहाँ पर क्या था बेटा, log of 8 to the base 2, that is log of 16 to the base 4 will be equal to 2. समझ में आया? I am repeating it that 2 power of base 4 is 16. Clear? Then if we write it in form of log, then log of 16 to the base 4 will be equal to 2. But here there are different bases, that is base 2 and base 4. It will be difficult to calculate the value. Here we calculate all the values as log to the base 10. क्या मतलब है इसका, log to the base 10, that is the easiest form. If we write log of 10 to the base 10, it is considered as 1. Log of 10 to the base 10 is considered as
1, या फिर हम इसको सिंपल लिखते हैं log of 10 इक्वल टू 1 बिकॉज वी आर कंसिडरिंग इट एज log टू द बेस 10 फॉर ऑल द इक्वेशंस। ठीक है, हम इसको क्या मानेंगे, log टू द बेस 10, हम लिखेंगे नहीं। क्लियर। अब अगर मैं लिखूं log of 100 दैट इज log of 10 की वैल्यू कितनी थी 1, log of 100 की वैल्यू 2, log of 1000 विल बी इक्वल टू 3, log of 10,000 विल बी इक्वल टू 4 एंड यहां पर हम क्या मान सकते हैं दैट इट वाज log of 10 की पावर कितनी थी 1। तो अगर हम कंसिडर करें फर्स्ट दैट इज log a into b, it is written as log a plus log b. Log of a into b is written as log of a plus log b. If log a by b is given, it will be log of a minus log of b, and these all are in term of log to the base 10. This is the main point. Third, if there is log of a raised to the power b, then here we can see that 1 अगर यहाँ पर था तो 1 को हमने क्या माना था कि ये कहाँ चला गया आगे, दैट मीन्स b आपका कहाँ चला जाएगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा, b into log of a. For example, if there is log of 34 raised to the power 2, log of 34 raised to the power 2, it will be 2 into log of 34. Clear? I think there is no problem. Next, fourth, if there is log of a raised to the power 1 by b, then this is the same situation that 1 upon b into log of a. Clear? We can convert all these terms into log value. Now हम बात करते हैं अपने 2 टर्म्स की कि किसी भी लॉगरिथम वैल्यू में 2 पार्ट्स को हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू कैलकुलेट द log of 6397, that is there is point after 7, there are total 4 digits. कितने डिजिट्स हैं यहाँ पर 4, कितनी हुई 4. क्लियर. अब हमारे पास ये जो पार्ट है ये क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक. क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक, एंड दिस विल बी मैंटिसा. क्या होगा, ये होगा कैरेक्टरिस्टिक एंड दिस विल बी मैंटिसा. Now for characteristic we have to count the digits, that is 6, 3, 9 and 7. There are total 4 digits. How many digits? 4. Clear? We have to calculate the digits only, that there are 4 digits. Now we will subtract 1 from all the digits, that is 3. We will write it 4 minus 1 equal to 3, that is for log of 6397.0 we have to write 3 and after that we should put a decimal. Now look at this. If there is 63, we have to calculate the value for first 2 digit, that is 63. You can see it here that 63 से कहाँ पर जाना है, राइट साइड में 9 पॉइंट तक. 9 पॉइंट पर जब हम जाते हैं तो वैल्यू कितनी है 8055. आई एम राइटिंग इट हेयर दैट 63 की वैल्यू 9 पर कितनी है 8055. अब हम देखेंगे इसका डिफरेंस किसके लिए, 7 के लिए. अब अगर हम इसमें राइट की तरफ जाते हैं तो 7 इसी हॉरिजॉन्टल लाइन में कितना शो कर रहा है 5. ये 5 हम क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे एंड इट विल बी 8065.
0। क्लियर हुआ? 63 के लिए हम 9 की वैल्यू देखेंगे पहले और फिर 7 का डिफरेंस और फिर उन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी है, 8060। एंड आफ्टर इट वी विल पुट 8060। मैं इसको फिर दोबारा से क्लियर कर रही हूँ कि हमारे पास है 6397, यानी कि 6397 की वैल्यू को हमें लॉग की फॉर्म में कैलकुलेट करना है। और उसके बाद मैंने आपको पॉइंट लगा के दिखाया था कि हम इसको कितना मानेंगे, 0.0। सबसे पहले हमें देखना है कि पॉइंट से पहले कितने नंबर हैं, 1 2 3 4। देयर आर 4 नंबर्स। उनमें से हम क्या माइनस करेंगे, 1 को माइनस करेंगे, कितना आया, 3। और उस 3 के बाद हम क्या लगाएंगे, पॉइंट। अब हमें देखना है 63 को लॉग टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। 63 के लिए 9 की वैल्यू देखेंगे हम नीचे की तरफ और फिर दोबारा से 1 2 3 4 7 का डिफरेंस देखेंगे यहाँ पर, जो कि 9 के लिए हमारा आया था 8055 और डिफरेंस आया था 5। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड, और ये कितना हो गया, 8060। और 3 के बाद हम क्या लगा देंगे, उसका पॉइंट। क्लियर? अब हम आते हैं एंटी लॉग पे। एंटी लॉग की वैल्यू अगर हमें चेक करनी है, अगर हमें कैलकुलेट करना है एंटी लॉग ऑफ 2.6431, यहाँ पर हम पॉइंट के बाद वाले डिजिट से अपनी वैल्यू को स्टार्ट करेंगे। आगे वाली वैल्यू को हमें क्या करना है, 10⁻² बनाना है। दैट इज एंटी लॉग ऑफ 2.6431 के लिए हमें इस 2 का क्या करना है, सिर्फ 10 की पावर बनानी है और इसको मल्टीप्लाई करना है जो 0.6431 के लिए हमारी एंटी लॉग की वैल्यू आएगी। अब अगर मैं आपको एंटी लॉग दिखाऊं, यहाँ पर हमारा एंटी लॉग है जो किससे स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट से ही स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसको क्लोज से देखेंगे तो एंटी लॉग में पॉइंट के बाद ही स्टार्ट होता है नंबर। दैट इज 0.64 का हमें कहाँ पर देखना है, 3 के लिए। 64 के लिए 3 पर वैल्यू कितनी है, 4395। 0.64 के लिए 3 की वैल्यू कितनी है, 4395। एंड इसका डिफरेंस कहाँ पर देखना है हमें, 1 के लिए। दैट इज ऑल्सो हेयर। यहाँ पर 1 हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो इट विल बी 4395 प्लस 1 4396। नाउ हमें सिर्फ ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है 4396 और इसके एक डिजिट के बाद क्या लगा देना है, पॉइंट। क्या करेंगे हम, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे और पॉइंट से पहले जो नंबर है उसको 10 की पावर बना देंगे। क्लियर? एंटी लॉग कब कैलकुलेट करना पड़ता है हमें, फॉर एग्जाम्पल मान लिया हमारे पास वैल्यू आई दैट log ऑफ x इज 2 और ये इंडिकेट करता है माइनस साइन को। हम इसको लिख सकते हैं -2.1352 कि log ऑफ x आपने किसी भी एक न्यूमेरिकल में सॉल्व किया और उसकी वैल्यू कितनी आई, -2.1352। अगर हम इस चीज़ को कंसिडर करें तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग ऑफ x लेगा x, दैट इज x विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -1.352। अब एंटी लॉग के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि ये नंबर हम सिर्फ क्या करेंगे, 10 की पावर बना देंगे। तो 10 की पावर कितनी हो गई, -2। क्लियर? इसकी क्या वैल्यू है कि हमें इसको क्या करना है, 10 की पावर बना देना है। अब हमें क्या देखना है, एंटी लॉग ऑफ 0.135 पर देखें। एंटी लॉग ऑफ 0.135 पर अगर देखें तो कितना है, 1365। 1365 ये हो गया 13 के लिए, 0.13 के लिए 5 की वैल्यू। अब हमें डिफरेंस किसका देखना है, 2 का। दैट इज हम इसको और राइट की तरफ लेके जाएंगे और 2 के लिए कितनी है, 2 का डिफरेंस 1। 2 का डिफरेंस कितना है, 1।
हम वो 1 इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इट विल बी 1366, सॉरी 1366, इट विल बी हेयर 1366, और एक डिजिट के बाद क्या लगाना है हमें, पॉइंट, और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई लाइक दिस, कि हमें जो भी वैल्यू आई उसके एक डिजिट के बाद क्या लगाना है, पॉइंट। क्लियर? इट इज एंटीलॉग ऑफ -2.1352। ऐसे ही आप बाकी और जो कैलकुलेशन है आपकी उनके लिए भी लॉग की वैल्यू को चेक कर सकते हो। आई होप आज आपको लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम क्लियर हो गया है। एंटी लॉगरिथम में जो वैल्यू लेफ्ट में है उसको पॉइंट से जो लेफ्ट में है उसको 10 की पावर बनाना है, और लॉग में जैसे लॉग ऑफ 6397 था तो पॉइंट से पहले वाले टर्म में से जितने डिजिट हैं उनमें से क्या करना है, 1 माइनस करना है, कितना आएगा, 3, और यहाँ पर उस वैल्यू को एज इट इज लिख के एक डिजिट के बाद हमें क्या लगाना है, पॉइंट। क्लियर?